भगती फाकीर सतगुरु तारी वाणी मारा हिरद में सतगुरु तारी वाणी मारा हिरद में राजी रे भगती फाकीर सतगुरु तारी वाणी मारा हिरद में राजी रे भगती फाकीर। श्री देव नारायण भगवान की। So good evening everybody, all dear brothers and sisters, the bhaktas of Sri Sadguru Dev. देखो हमें हंग अंग्रेजी समझ में आवे, हंग बैठी चुपचाप। Today on very auspicious day of Sri Guru Purnima, the blessing is coming to all of you around the whole world. Those who are with me here in this hall, in the holy place, Jordan, and those who are with us through the webcast around the whole world. Bless you on the name of Sri Alakpuri Ji Siddhpith Parampara. The Guru Purnima is not just like a religious festival. Guru Purnima is not something like a social event. Guru Purnima is beyond all these worldly gathering or festivals. The word what we call Guru is a language difference. You may call master or you may call the teacher. But the Sanskrit word Guru, which is very significant, Gu means the darkness of the ignorance, darkness of the attachment, darkness of the confusions, and the darkness of the moha. Ru means the light. The light means the knowledge, the unity, the Brahman, the consciousness. Now, how these two words comes together? Since when this significant of the Guru Purnima is that it is said that this globe, earth, which was under the water, and out of the 24 incarnations, the first Varahi Avatara, who brought this earth out of the water, the light which is given by the sun which has millions and trillions of rays, but it was those rishis who could observe and count each and every ray of the sun. So the first ray which touches the earth, as soon as the earth is brought out of the water from Varahi Avatara, the first ray which is known as Ushni, and in our Sanskrit as well as local language, we call Ushapan. Ushapan means that we drink the morning water, that's called Ushapan. Means that water which has a touch, the energy of the first sun ray. For that day, when the darkness of this mortal planet
is merging into the oneness with the light of the sun. And that day was very soft, gentle light, which called the full moon. Completely illuminated, the moon with full of its own light, which Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, Arjuna, through the light, moonlight, I enter into the vegetation as a nectar. That nectar of the immortality, that nectar of the Vakyas, Amrit Bani, Amrit Pan, Sudha Pan, Usha Pan. So, since the existence of this earth and the sun, planets, all moon and etc., that significance the celebrations of the Guru Purnima. Therefore it is said, Brahmanandam Paramasukhadam Kevalam Jnana Murtim Dvandatitam Gagan Sadrasam Tasmasya Dilaksham Ekam Nityam Vimalachalam Sarvadishakshi Bhotam Bhavatitam Triguna-rahitam Satguru Tam Namahamyam. So that Brahma Ananda, Ananda is a desire. Brahma Ananda is the supreme bliss. As long as we are connected to this worldly joy, then we are connected to the causal body, the body of the desires. That will pull thy consciousness back into this lower planets, qualities of the mortal world. As soon as we enter into the supreme bliss, that's called Paramananda. Anandoham Anandam Brahmanandam. I am bliss. I am bliss. I am the supreme bliss. So, it is Guru Purnima is not a celebration of the five tattvas, bodies of the Gurudev, but that light, that knowledge, that nectar, which bless the disciples. But if the disciple have the doubts, if there is some doubts, misguides, or laziness or something, you are within the second, millions of miles behind, millions of the kilometers. With the one, हमारे आँख की पलक जो होती हैं, एक पलक जितनी अगर शिष्य के मन के अंदर, भावना के अंदर थोड़ा सा भ्रम भेद हो जाए, तो करोड़ों करोड़ों कोष की दूरी हो जाती है, क्योंकि सूर्य मंडल की जो किरण है, जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा 40,000 किलोमीटर, वो 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है। लेकिन उस सूर्य की परिक्रमा उसकी और उससे भी परे, किसी ने कहा कि 14 लोक 21 ब्रह्मांड। हमारे ऋषि मुनियों ने, दे हैव रिसर्च and their consciousness with their this subtle body, with their jnana vijnana traptatma, through that jnana vijnana, the science of that knowledge, they could reach 2,100 sun systems beyond that. That is called the Guru. Therefore, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahm Tasmai Sri Guruve Namaha. The Gurudev is an embodiment of the Brahma, that he gives the motivation, the inspiration, the ideas, the buddhi, the intellect, that which creates through the human brain. That's called Brahma. That's called Brahmin. Brahma janeti Brahmana. ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया है वही ब्राह्मण कहने लायक है। दूसरा, चाहे आप क्षत्रिय कहो या शूद्र कहो या वैश्य कहो, ओनली वन, दैट इज ए महापुरुष ईश्वर।
That is an enlightened soul. That is the Supreme One. That's called Brahmajaneti Brahmana. That is called the Sadguru Dev. So, it is not this material world, but it is that Brahman. But after that all, our Sadguru Dev Swami Madhvanand Ji used to say, बाप जी गुरु जी कहते थे स्वामी माधवानंद जी, सब गट मेरा साहिया कोई गट खाली ना आए, बलिहारी उस गट की प्रगट बोले आए. In each and every entity there is the light of that Supreme. Each and every entity is carrying the light of that Brahman. But in those hearts, that light comes and speaks through that body. That is then known, that is Sadguru. Therefore, sab gat mera sahiya, koi gat khali na aaye. बलिहारी उस गट की हम उसको प्रणाम करते हैं, उनको साष्टांग दंडवत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं. ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. Therefore, we worship the embodiment of the Gurudev's idol. And Dhyan Mulam Guru Murti, Puja Mulam Guru Padam, we adore, we serve, and we worship the lotus feet of the Gurudev. Mantra Mulam Guru Vakyam, doesn't matter how many mantras you will do, but follow the Guru Vakya, that is one of the highest mantra. Otherwise, mantra jap karte jao, you will not reach anything. Therefore, Mahaprabhu ji said in one bhajan, Gurudev bina karaj naya sare, Gurudev bina karaj naya sare. कोटि उपाय करे कोई चाहे, कोटि उपाय करे कोई चाहे, न भव सिंधु तिरे, गुरुदेव बिना कारज नाय सरे. दीप नारायण भगवान की. तो भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि गुरुदेव बिना कारज नहीं सरे. कोठी उपाय यानी हजारों उपाय कर लो, न भव सिंधु तेरे, गुरुदेव बिना कारज नहीं सरे. तो सब घट मेरा साइया, कोई घट खाली ना. इन ईच एंड एवरी हार्ट इज माय लॉर्ड इज dwelling, but my adoration to that heart in which Gurudev himself, the Brahman, the Brahmvakya Janardanam, ब्रह्मवाक्य कहते हैं. तो ब्रह्मवाक्य जनार्दन यानी गुरुदेव के मुख से, संत के मुख से जो भी कुछ निकलता है वो सत्य निकलता है. चांद टले सूरज टले, महापुरुष का वचन कभी नहीं टिले. Therefore Guruji said, may the sun and the moon change their direction, but the word of the Sadguru, the word of the self-realized, that master Brahmagyani, his or her words can never will be changing, and it is sure, and it is sure. Therefore, my dear ones all around the world, Guru is not only body, but let us say we have two boxes in our hand, एक डिब्बी, एक कंटेनर स्मॉल. एक काउंटर में तो छोटा सा थोड़ा सा तिल्ली या जो व्हाट वी कॉल सौंप आदि जो भोजन के बाद खाते हैं. तो इन वन कंटेनर इज सम लिटिल नट्स, एंड इन वन स्मॉल कंटेनर देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड which has millions of the dollars of value, billions. कंटेनर तो वो डिब्बी तो दोनों एक ही है, एक ही रंग है, एक ही चीज की बनी हुई है. लेकिन जिनमें वे बायो नायका रखे गए, वह नायका वाली डिब्बी कटे भूल जाए, बस मैं तो भूल गया.
लेकिन जो इतना बड़ा हीरा जिसके पास में है और बस जिसका करोड़ों की कीमत है, अगर वो बस में भूल जाए तो नींद नहीं आवे, हाय मारो हीरो कटे गयो परो। तो वह भाव उस डिब्बी का नहीं है, भाव उसके अंदर में क्या है। इसीलिए कि है कि जात न पूछे साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कीजिए तलवार का और पड़ा रहने दे म्यान। अरे क्या है तुम गर्व करते हो तुम्हारे शरीर का, समाज का? अरे वो हरि भजन करने वाला, इन हुज हार्ट दैट ज्वेल्स दैट डायमंड्स ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, फ्रॉम देयर द वेव्स द वाक्यास कम्स, दैट्स कॉल्ड गुरु वाक्या। एंड we all are longing for that. We all are coming, we are attracted to that light of the Gurudev's wisdom, like the moths comes to the light. जैसे कीटाणु आते हैं, पतंगे आते हैं प्रकाश की तरफ। प्रकाश किसी को कहता नहीं कि मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन बिने बुलाए जितने ही पतंगे आ जाते हैं। उसी प्रकार जहाँ सद्गुरुदेव निवास करते हैं, उनकी चरण रज हैं, वहाँ पर सभी प्राणी आना चाहते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं लेकिन सभी कोई आते हैं। लेकिन सज्जनों, दो चीज हैं, गंदगी पर, कचरे पर सभी मक्खियां उड़ के आती है। चाहे तुम्हारे चेहरे पे पसीना की गंदगी हो, चाहे तेरे कपड़ों पे गंदगी हो, चाहे बच्चे ने टट्टी किया हुआ हो, या मरा हुआ जानवर हो, या कुछ भी गंदगी बदबू है, छिड़ा हुआ जानवर पड़ा है, वहां मक्खी बैठेगी जाके। मक्खियां आती हैं। क्या उस गंदगी के ऊपर कभी आपने मधुमक्खी को देखा? बताओ। कई मधुमक्खी वहां नहीं बैठती है, लेकिन जहां फूल है, सुगंध है, कमल खोले हुए, पुष्प खोले हुए, गुलाब खोले हुए, मोगरा खोला हुआ है, वहां पर मधुमक्खी है, वो भंवर गूंज रहा है। क्यों नहीं वो गंदगी पे जाती है? क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी है, और गंदे पे बैठने वाली मक्खी गंदी होती है, उसकी प्रकृति ऐसी है। तो कहा है कि चंदन मक्खी पर हरे और दुर्गंधी वहां उड़ जाए, ऐसे अज्ञानी सत्संग नहीं सुने, ऊँगे के उड़ जाए। तो कोई पंडित जी चंदन की लकड़ी घिस रहा था तिलक कराने वास्ते, तो मक्खी आने बैठ गई। पंडित जी रो पोतो आयो, 2-3 मीटर दूर बैठो बैठो वो मल कर रहा था, वो टट्टी कर रहा था। तो अंग्रेजी में बोलो लैट्रिन करी हो, तो मैंने कहा था लेट कौन करे, मारवाड़ी भाषा में बोलो नहीं रहे। तो मक्खी जो चंदन घिसा हुआ था, वो लेप जिसका तिलक करने के लिए, वह मक्खी चंदन माता उठ न जाने गंदगी माते बैठ गई। यूं जो सत्संग में आवे न बातों करे, तो वो मक्खी है जो आई है तो गंदगी में पड़ी रही है। और अगर मधुमक्खी को कोई कमरे में बंद कर दे, गंदगी है, तो वो वही मर जाती है, घुट जाए, प्राण घुट जाए। इसीलिए क्या ताकत है जीव की, राम नाम ले, कर्म दे थापरी ने मुंह फेर दे। इसलिए सज्जनों, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व, अलगपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, जहाँ स्वर्ग रोहिणी यानी जहाँ स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। जब पांडव अपना राज्य प्राप्त करने के बाद कि अब हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था, वो पूरा हो गया, अब तब चले जाएंगे हिमालय में। द्रौपदी भी वहाँ बर्फों में खत्म हो गई, और अर्जुन भी हो गया, वो भीम भी हो गया, चारों ही पांडव भी वहाँ ठंडे हो गए। एक युधिष्ठिर रहा, और युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता जा रहा था। जब वो सतोपत में आए,
सतोपत एक पानी की झील है। तो इस 11 को गए हुए 11 को देव उस सतोपत में स्नान करके विश्राम में चले गए। जो कहे कि देव हो ही गया, क्या को नहीं गया। और देव झूलनी 11 उस दिन फिर सभी ब्रह्मा विष्णु और शिव और सभी सतोपत उस झील के अंदर स्नान करते हैं। तो आपको कहीं जाओगे 4 पूजा नहीं रवाड़ी काटोगे नहीं स्नान करा रही। तो वो सतोपत वहाँ है, उसी सतोपत के पास है। और वो अलकापुरी जो है पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ से झरने निकलते हैं। उस झरनों से बनी हुई अलकपुरी जी की चरण रज जो है वो नदी आती है जिसका नाम अलकनंदा नदी नाम उसका है। इधर भागीरथी आती है गंगा, और उधर से वो अपने मंदाकिनी जो नदी है वो आती है। 3 नदियों का मिलन होता है जिसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, जिसको देव प्रयाग कहते हैं। तो जैसे तैसे ही करके युधिष्ठिर पहुंच गया स्वर्ग रोहिणी। तो वहां जाने के बाद स्वर्ग से 2 दूत आए, आके कहा कि युधिष्ठिर आपकी तपस्या आपका कार्य पूरा हो गया, हमें आदेश हुआ है कि आपको सशरीर स्वर्ग में ले जाते हैं, इसीलिए उनका नाम स्वर्ग रोहिणी। तो युधिष्ठिर खुश हुआ, लेकिन देखा कि मेरा कुत्ता भी साथ है, इसको भी साथ ले जाऊंगा। तो वो वफेदार है ना, बोले कि नहीं स्वर्ग में हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, कुत्ते को साथ नहीं ले जा सकते हैं। प्रोटोकॉल होता है भैया, हमारे यहाँ भी तो हमारे प्रशासन के यहाँ सज्जन बैठे हैं हमारी सुरक्षा के लिए सभी की, जिनके पास प्रोटोकॉल है तब यहाँ खड़े, नहीं तो जाने खेत में बैठा बैठा ठंडी हवा खाई, पंखा अलावा जरूरत ही को नहीं। तो वो बोले कि नहीं कुत्ते स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो क्या कहता है युधिष्ठिर, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बोलो है। तो गुरु जी क्या कि ब्रह्मलोक में नहीं जाऊं, हमारा पूरा चेला साथे जावे। तो Therefore, Gurudev also said, I quit the Brahmalokas as long as my disciple not go with me. बोल सदगुरुदेव। तो युधिष्ठिर वापस मुड़ गया। इतने में वो कुत्ता जो था अपना रूप बदल करके क्या बना धर्मराज। बोला कि युधिष्ठिर मैं धर्मराज हूं और मैं तेरी परीक्षा शुरुआत से परीक्षा लेते आ रहा हूं, तूने धर्म की रक्षा की है, इसलिए हे युधिष्ठिर आज से तेरा नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। तो वो वहां से अपनी परंपरा चलती आ रही है। तो अलकपुरी जी सिद्ध गादी वहां से है और आप उसी कड़ी में जुड़े हुए हो, कितने भाग्यशाली हो। नहीं तो आजकल तो मोटा मोटा महात्मा आड़ा बनियोड़ा है जो को गुरु जी रो फोटो ही को नहीं रखे। कोई क्या थारा गुरु जी कौन नाम के मैं गुरु जी गए हैं तो बताऊं। अरे मोटा मोटा भाषण दे रेडियो में टेलीविजन में। अरे गुरु जी तो तस्वीर है इसको नहीं कटी, ये खुद ही बैठा रहे आगे गुरु जी बनने। अरे तुम कितने ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, चेला तो चेला ही रहेगा और गुरुदेव तो गुरुदेव ही रहेगा। इसलिए देखो आपने अपने गुरुदेव की तस्वीर है कि वो नहीं तो मैं ही मारी मोटी लगाने बरा तो बीच में बाबू जी छोटे छोटे लगा दूं तो वो तो वजह मारो, वो दिन तो मारो खत्म वेगियो। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का असली आनंद तो सत्संग में, गुरु वाक्य सुनने में, और भेदभाव नहीं होता है। देखो अबे भजन गाने वाले दूसरी संप्रदायों के गुरुओं का भी गाया है, कबीरदास जी का भी गाया है, राम स्नेहों का भी गाया है, और सभी का क्यों नहीं गाएंगे। वो मेरे ही हैं, मैं ही वही हूं, मेरे और उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। इसलिए सनातन धर्म की एक ही विशेषता है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी संप्रदायों को मानते हैं। संप्रदाय गलत शब्द नहीं है, आजकल अबे वो गलत कर दियो कि सांप्रदायिक हो गयो। अरे डपोट संघ थाने कहीं ठार है। इसलिए हमारा सनातन धर्म किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। इसलिए हमें गौरव है कि हम उस सनातन धर्म का अंश हैं जो कि युग युगांतर से ऋषि मुनियों का चलता आ रहा है। हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं, यही हमारी शान है कि नहीं।
और इसी शान से हमारा मान है, नहीं बदल दो तो फिर अपमान है। बोल गर्ग जी महाराज की तो सच्चिदानंद बोल सतगुरुदेव की। Therefore, my dear brothers and sisters, all the bhaktas of the Alakpuri Siddhipith Parampara, I have to speak Hindi also a little bit, because today the majority of the Indian brothers and sisters are here. But I do hope that you understood some words in Hindi too and English. Wherever you are, tomorrow is Guru Purnima, today is already Guru Purnima. The constellation, the moon is already full. In some countries like Australia and New Zealand and so on, there is already Guru Purnima began. America, they are waiting, they have a noon. So this is a globe which is moving around. So Guru Purnima is that day when Varahi Avatar brought this earth out of the water, and the first time the sun ray touches, the first ray touches the earth, at the same time the moonlight. That's why the sun and moon, they are exactly same time positioning on this earth. Bharat Bhumi, Bharat Bhumi, Bharat Bhumi, ये देव भूमि है, ईश्वरीय भूमि है. Therefore, भारत को दो भागों में थोड़ा सा बांटा हुआ है. दक्षिण भारत, अरे दक्षिण भारत के अंदर विद्या, ज्ञान, वेद, शास्त्र का बहुत है. और दक्षिण भारत ने हमारे भारत को और पूरे संसार को अच्छे अच्छे महान ईश्वरीय विभूति आचार्य दिए. क्या दिया? बड़े बड़े शंकराचार्य आचार्य बने. लेकिन सज्जनों, हमारा उत्तर भारत है जिसने अवतार दिए हैं. बोलो गर्गाचार्य, तो उन्होंने आचार्य दिया तो हमने अवतार दिया. बोल सतगुरुदेव की. तो धर्म भूमि, कर्म भूमि, ईश्वर भूमि, अवतार भूमि, ये भारत है. हमें गौरव है कि हमारा जन्म भारत में हुआ. वंदो भारत वर्ष भूमि जहाँ सतगुरु दर्शन हो, आत्मज्ञान यहाँ ही मिले और देश नहीं कोई. ऋषि मुनि सब संत जन करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश. श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, श्री माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश. बोल भारत माता की. अलकपुरी जी महादेव की. देवादिदेव देवेश्वर महादेव की. दीप नारायण भगवान की. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की. भक्त और भगवान की. गौ माता की. सनातन धर्म की. मात पिता गुरुदेव की. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. ओम वाणी रे सुनत परम सुख उपजियो रे, दुर्मत गई रे हमारे. वाणी रे सुनत परम सुख उपजियो ने, दुर्मत गई रे हमारे.